Hi guys, in this lecture I am going to solve the problem here. So here I will read out the question. A cam with 3 centimeter minimum radius, so that is nothing but base circle radius, is rotating clockwise. Rotating clockwise means you have to measure the angles on the left side of the follower axis. Left side में आपको आउटस्ट्रोक ड्वेल रिटर्न स्ट्रोक निकालना है क्या प्रोफाइल में. At uniform speed of 1200 rpm, so this is nothing but n. They have given the speed of cam, that is 1200 rpm, and has to give the motion to the knife edge follower. So here the type of follower is knife edge follower as defined below. Here follower to move outward means outstroke through 3 centimeter during 120 degrees of cam rotation with simple harmonic motion. So here they are given the outstroke they have given 120 degrees, and this 3 centimeter is nothing but stroke. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आउटस्ट्रोक कंप्लीट होने के लिए फॉलोअर 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और कैम का रोटेशन होगा 120 डिग्रीज. सो इट मीन्स दिस 3 सेंटीमीटर इज नथिंग बट स्ट्रोक एंड 120 डिग्रीज इज नथिंग बट आउटस्ट्रोक. एंड द टाइप ऑफ मोशन इन दी आउटस्ट्रोक इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. आउटस्ट्रोक में मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन है. ड्वेल फॉर नेक्स्ट इज 60 डिग्रीज. फर्स्ट ड्वेल विल बी 60 डिग्रीज. Next, follower to return to its starting position during the next 90 degrees with cycloidal motion. So here the return stroke is given. Return stroke is 90 degrees and the type of motion in the return stroke is cycloidal motion. Next, dwell for the remaining period. So whatever the angles will be remained. So whatever the angles made by the cam will be remaining dwell. Next, draw the profile of the cam. Draw the cam profile when the follower axis passes through the cam center. Passes through the cam center. Also find the maximum velocity and acceleration during outward and inward stroke. And here you have to draw the cam profile when the axis of follower passes through the cam center. So here there is no offset. Okay. Next we have to also find out velocity and acceleration during outstroke and return stroke. Outward means outstroke, inward means return stroke. Okay. So here first I will write down the given here. So for that again I will read out the question. A cam with 3 centimeter minimum radius. So this is nothing but base circle radius. So here it is written base circle radius RB is equal to 3 centimeter. Next is rotating clockwise. Here the type of cam rotation is rotating in clockwise. So that I have written here. Next, at a uniform speed of 1200 rpm. So here the speed of the cam is 1200. So that I have written it as cam speed n is equal to 1200 rpm. To give the motion to the knife edge follower as defined below. So here the type of follower is knife edge follower. Okay. Next, follower to move outward through 3 centimeter. So this 3 centimeter is nothing but stroke. और स्ट्रोक कंप्लीट होने के लिए फॉलोअर को 3 सेंटीमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, वही बता रहे हैं. फॉलोअर टू मूव आउटवर्ड थ्रू 3 सेंटीमीटर ड्यूरिंग 120 डिग्रीज ऑफ कैम रोटेशन विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो आउट स्ट्रोक इज 120 डिग्रीज एंड स्ट्रोक इज 3 सेंटीमीटर एंड टाइप ऑफ मोशन द आउट स्ट्रोक इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो दैट आई हैव रिटन हियर. आउटवर्ड और आउट स्ट्रोक theta O is equal to 120 degrees and type of motion is simple harmonic motion. And stroke is 3 centimeter. Next, dwell for next 60 degrees. So first dwell will be 60 degrees. So theta D1 is equal to 60 degrees. Next, follower to return to its starting position during the next 90 degrees with cycloidal motion. The return stroke is 90 degree and type of motion in the return stroke is cycloidal motion. So that I have written here. Return stroke theta R is equal to 90 degrees and type of motion is cycloidal motion. Okay. Next, draw the cam profile when the follower axis passes through the cam center. So you have to draw the cam profile when the axis of the follower is passing through the center of the cam. Next, also find the maximum velocity and acceleration accelerating outward and inward stroke. So here you have to find out the maximum velocity and acceleration during outstroke and return stroke. So here the outstroke
इन द आउटस्ट्रोक द टाइप ऑफ मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे देखो आउटस्ट्रोक में सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो आउटस्ट्रोक में आपको मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के फार्मूले यूज़ करना है। आउटस्ट्रोक में आपको मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के फार्मूले यूज़ करना है। सिमिलरली रिटर्न स्ट्रोक में टाइप ऑफ मोशन साइक्लोइडल मोशन है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यूरिंग इनवर्ड मतलब रिटर्न स्ट्रोक में फाइंड करने के लिए आपको साइक्लोइडल मोशन के फार्मूले यूज़ करना है। ठीक है, तो ये होगा गिवन। सो फर्स्ट आई विल ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। तो यहाँ पे देखो एज यूजुअल यहाँ पे देखो स्केल सेट करता हूँ मैं बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज़। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट मैं यहाँ पे वाई एक्सिस निकाला, एक्स एक्सिस निकाला हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे देखो पहले मैं स्केल सेट करता हूँ बेस्ड मुझे स्ट्रोक को सेट करना है। स्ट्रोक का वैल्यू देखो 3 सेंटीमीटर है, सो ये वैल्यू के हिसाब से मैं स्केल सेट करता हूँ। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपको स्ट्रोक मार्क करना है, तो इसलिए वाई एक्सिस का स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ही लेता हूँ। वाई एक्सिस का स्केल जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ही लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रोक हो गया 3 सेंटीमीटर, स्ट्रोक यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो इतना निकालने के बाद आपको एक्स एक्सिस में आउटस्ट्रोक, ड्यूअल, रिटर्न स्ट्रोक मार्क करना है। तो उसके लिए आपको आउटस्ट्रोक, ड्यूअल और रिटर्न स्ट्रोक के वैल्यूज़ को देखना है। यहाँ पे देखो आउटस्ट्रोक का वैल्यू 90 डिग्रीज़ है, ड्यूअल का 60 है, रिटर्न स्ट्रोक का 90 डिग्रीज़ है। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यूज़ के हिसाब से आपको एक्स एक्सिस का स्केल सेट करना है। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 20 डिग्रीज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। एक्स एक्सिस का स्केल जो है 20 डिग्रीज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो आउटस्ट्रोक 120 डिग्रीज़ है, सो बट स्केल के हिसाब से कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर निकाला हूँ। ओके, और यहाँ पे अगेन आउटस्ट्रोक में 6 इक्वल पार्ट्स बनाया हूँ। यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, सो ईच पार्ट विल बी 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, ऐसे ही हर एक पार्ट भी 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे। ठीक है, ये मार्क किया हूँ। ओके, वर्टिकल लाइंस। नेक्स्ट रिटर्न स्ट्रोक देखो 90 डिग्रीज़ है, तो यहाँ पे रिटर्न स्ट्रोक नेक्स्ट जो है ड्यूअल है 60 डिग्रीज़। सो ड्यूअल देखो 60 डिग्रीज़, यहाँ 60 डिग्रीज़ बोले तो ये स्केल के हिसाब से हुआ 3 सेंटीमीटर। सो यहाँ से यहाँ फर्स्ट ड्यूअल जो है 60 डिग्रीज़ है और अकॉर्डिंग टू स्केल कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर आपको मार्क करना है। नेक्स्ट आपको रिटर्न स्ट्रोक मार्क करना है। रिटर्न स्ट्रोक देखो 90 डिग्रीज़ है, रिटर्न स्ट्रोक 90 डिग्रीज। सो एज पर द स्केल 20 डिग्रीज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो 90 डिग्रीज़ के लिए 4.5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से आपको यहाँ तक 4.5 सेंटीमीटर निकालो। सो नेक्स्ट 4.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मार्क करने के बाद और 4.5 को आपको 6 डिवीजन में डिवाइड करना है। 4.5 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 6 इक्वल पार्ट्स बनाना है ये डिस्टेंस को। तो आपको मिलेगा 0.75 सेंटीमीटर्स। ईच पार्ट जो है 0.75 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से यहाँ 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 0.5 सेंटीमीटर, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ 0.5 सेंटीमीटर। सो ईच पार्ट विल बी 0.75 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पार्ट्स बना के आपको वर्टिकल लाइंस निकालना। तो यहाँ तक होगा, यहाँ तक आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हुआ। अभी क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आउटस्ट्रोक में टाइप ऑफ मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इसलिए यहाँ आपको आउटस्ट्रोक में आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का डायग्राम निकालना है। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन का डायग्राम निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाना है। यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाना है। यहाँ पे देखो टोटल लेंथ जो है आउटस्ट्रोक का 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो सेमी सर्कल निकालने के लिए हमको इसका रेडियस चाहिए। 3 सेंटीमीटर है बोले तो मुझे यहाँ पे मिडल पॉइंट कंसिडर करके वहाँ से सेमी सर्कल निकालना है। तो मिडल पॉइंट जो है 1.5 सेंटीमीटर पे होगा। तो 1.5 में यहाँ पे मैं ये कटर सेट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पे आया। तो यहाँ पे आपको सेमी सर्कल निकालना है। तो ये होगा आपका सेमी सर्कल। ठीक है, सिर्फ आउटस्ट्रोक में। ठीक है, अब ये सेमी सर्कल को आपको 6 इक्वल डिवीजन्स बनाना है। 180 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे देखो सेमी सर्कल बोले तो 180 डिग्रीज रहेगा उसका, यहाँ से यहाँ एंगल 180 डिग्रीज रहेगा। तो आपको यहाँ से यहाँ 6 इक्वल पार्ट्स बनाना है। सो 180 डिवाइडेड बाय 6, सो 6 1 जा 6 3 जा, सो ईच पार्ट विल बी 30 डिग्रीज। सो ईच पार्ट आपको 30 डिग्रीज बनाना है।
तो मैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ रफली निकाल रहा हूँ 30 डिग्री, तो आप करेक्टली निकालिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 6 इक्वल पार्ट्स बनाया हूँ सेमी सर्कल में। यहाँ से एक पार्ट 30 डिग्रीज, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ सेकेंड पार्ट 30 डिग्रीज, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ थर्ड पार्ट 30 डिग्रीज, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ फोर्थ पार्ट 30 डिग्रीज, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ फिफ्थ पार्ट 60 डिग्रीज, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ सिक्स्थ पार्ट 60 डिग्रीज। ओके, तो ये होने के बाद मैं इसको नंबरिंग दिया हूँ 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट्स पे, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 4 है, ये पॉइंट 5 है, ये पॉइंट 6 है। तो अभी क्या करना है यहाँ पे, ये पॉइंट से सेमी सर्कल के पॉइंट से 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट से आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस निकालना है। और वो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है नी ये आउटस्ट्रोक के वर्टिकल लाइंस को कट करना है, सिर्फ आउटस्ट्रोक के वर्टिकल लाइंस को, क्योंकि यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है नी सिर्फ आउटस्ट्रोक में है। तो इसलिए यहाँ पे देखो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे निकालता हूँ, सिर्फ आपको आउटस्ट्रोक तक उतना ही निकालना है। अगर समझो सिंपल हार्मोनिक मोशन रिटर्न स्ट्रोक में भी रहा तो आपको ये लाइन जो है ना यहाँ तक एक्सटेंड करना पड़ता था, मगर यहाँ पे देखो आउट स्ट्रोक में है, सॉरी रिटर्न स्ट्रोक में साइक्लोइडल मोशन है, सिर्फ आउट स्ट्रोक में सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इसलिए आपको लाइंस आउट स्ट्रोक तक उतना ही निकालना है। ऐसे यहाँ पे देखो हर एक पॉइंट से मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस निकाला और सभी हॉरिजॉन्टल लाइंस ये वर्टिकल लाइंस को कट कर रहे हैं। अभी आपको यहाँ पे मार्किंग करना है। क्या मार्किंग करना है, देखो ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन पे कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे, तो इस पॉइंट को मार्क करना है। ये पॉइंट होगा ए। नेक्स्ट सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन सेकेंड वर्टिकल लाइन, ये पॉइंट बी। थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन थर्ड वर्टिकल लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसको ये पॉइंट सी। नेक्स्ट फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन फोर्थ वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इसको डी। नेक्स्ट फिफ्थ हॉरिजॉन्टल लाइन फिफ्थ वर्टिकल लाइन, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इसको ई। नेक्स्ट यहाँ पे सिक्स पे आप डायरेक्टली एफ करके ले सकते हैं। सो नेक्स्ट ये हो गया आपका। अभी देखो आउट स्ट्रोक में रिटर्न स्ट्रोक में साइक्लोइडल मोशन है। साइक्लोइडल मोशन के लिए आपको यहाँ पे एक सर्कल निकालना है। वो सर्कल को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेटिंग सर्कल करके बोलते हैं। तो रीजनरेटिंग सर्कल निकालने के लिए फर्स्ट हमको रीजनरेटिंग सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो उसके लिए एक फार्मूला है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट फार्मूला। ओके, यहाँ पे देखो रीजनरेटिंग सर्कल का रेडियस फाइंड करने के लिए फार्मूला है आर जी इज इक्वल टू यस डिवाइडेड बाई 2 पाई। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस फार्मूला। यहाँ पे देखो स्ट्रोक जो है 3 है, स्ट्रोक जो है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 पाई, तो 0.47 सेंटीमीटर होगा। ये जो है रीजनरेटिंग सर्कल का रेडियस हुआ। तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 0.5 सेंटीमीटर करके लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो 0.5 सेंटीमीटर होगा ये आर जी, मतलब रीजनरेटिंग सर्कल का रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको ये स्केल भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको वाई एक्सिस का स्केल जो है नहीं वो हिसाब से आपको ये वैल्यू चेंज भी करना पड़ेगा। आर जी का वैल्यू जो है नहीं स्केल के वाई एक्सिस के स्केल के हिसाब से आपको ये वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो वाई एक्सिस का स्केल हम जो है लिए हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 0.5 सेंटीमीटर को 0.5 सेंटीमीटर ही लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द स्केल। यहाँ पे आपको आर जी का वैल्यू यहाँ पे आर जी का वैल्यू आप एक बार फाइंड किए ना, तो वो वैल्यू को आपको वाई एक्सिस के स्केल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखो वाई एक्सिस का स्केल जो है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो इसलिए आर जी का वैल्यू भी है नहीं वही रहेगा 0.5 सेंटीमीटर। तो अभी यहाँ पे देखो रिटर्न स्ट्रोक में रीजनरेटिंग सर्कल जो है हमेशा यहाँ ऊपर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर रेडियस सेट कीजिए और रीजनरेटिंग सर्कल निकालिए। तो 0.5 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे रफ निकाल रहा हूँ, आप सही से निकालिए। ठीक है, ये होगा रीजनरेटिंग सर्कल। तो आप इसको रीजनरेटिंग सर्कल को भी आपको 6 इक्वल पार्ट्स बनाना है। रीजनरेटिंग सर्कल को भी आपको 6 इक्वल पार्ट्स बनाना है। तो यहाँ पे देखो 6 इक्वल पार्ट्स कैसे बनेंगे। यहाँ पे देखो 6 इक्वल पार्ट्स बन गए। तो 360 टोटल सर्कल का एंगल रहेगा 360 डिवाइडेड बाई 6, सो ईच पार्ट विल बी 60 डिग्रीज। सो यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ 60 डिग्रीज, नेक्स्ट 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 यहाँ से यहाँ 60 डिग्रीज। ओके, सो अभी इसको मैं नंबरिंग देता हूँ 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6। ओके, सो अभी क्या करता हूँ पहले यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन, ये रीजनरेटिंग सर्कल से जो है ना एक वर्टिकल लाइन निकालता हूँ ऐसे।
वर्टिकल लाइन निकालना है। रीजनरेटिंग सर्कल के सेंटर से आपको वर्टिकल लाइन निकालना है सर्कल में ही। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल लाइंस निकालना है। हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसे निकालना है बोले तो एडजेसेंट पॉइंट्स 1 और 2 ये दोनों को ज्वाइन करना है। बाजू में के मतलब आस पास ये हॉरिजॉन्टल जो ये रहते हैं पॉइंट्स इसको ज्वाइन करना है 1 2। नेक्स्ट 6 3 इसको ज्वाइन कीजिए। ओके, नेक्स्ट 5 और 4 इसको ज्वाइन कीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस तीन हॉरिजॉन्टल लाइंस है यहाँ पे 1 2 3, और तीनों हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ना ये वर्टिकल लाइंस पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो भी इसको नेमिंग देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको नेमिंग देना है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं ए करके लेता हूँ, इसको बी करके लेता हूँ, इसको सी करके लेता हूँ। ये इंटरसेक्शन पॉइंट ए, ये इंटरसेक्शन पॉइंट बी, ये इंटर पॉइंट सी। ओके, अभी ये इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको लाइंस निकालना है। ओके, पहले आप क्या करना है, ये बी पॉइंट जो है ना, बी पॉइंट से आपको ये देखो रिटर्न स्ट्रोक का एंड जो है ना वहाँ पे ज्वाइन करना है। ये पॉइंट ये लाइन निकालिए ऐसे। ओके, इतना ये लाइन बी से मतलब ये कॉर्नर से रिटर्न स्ट्रोक के ये ऊपर के कॉर्नर से ये नीचे के कॉर्नर तक ज्वाइन करना है। तो अभी देखो नेक्स्ट ए पॉइंट से और सी पॉइंट से आपको ऐसे लाइंस निकालना है कि वो लाइंस जो है ना ये बी से जो लाइन निकाला है ना उसको पैरेलल होना चाहिए। मैं और एक बार यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, ए पॉइंट से और सी पॉइंट से आपको ऐसे लाइंस निकालना है कि वो लाइंस जो है ना ये बी पॉइंट से अभी जो लाइन निकाले ना तो उसको पैरेलल होना चाहिए। आपके देखो बताता हूँ मैं, यहाँ पे रफली निकाल रहा हूँ मैं, आप सही से निकालिए ऐसे। ओके, नेक्स्ट ये पॉइंट यहाँ पे रफली निकाल रहा हूँ, एक्चुअली इसको पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो ये तीनों लाइन पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पे मैं रफली निकालना, आप सही से निकालिए। यहाँ पे देखो अभी ये फर्स्ट लाइन ऊपर से नीचे आना चाहिए। ये फर्स्ट ये तीन लाइन में जो है ना ये वाला फर्स्ट लाइन है। ये से ये पॉइंट से जो निकला है वो फर्स्ट लाइन है। ये फर्स्ट लाइन जो है नी फर्स्ट 2 पॉइंट से फर्स्ट 2 वर्टिकल लाइंस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना वहाँ पे मार्क करना है। यहाँ पे देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ये जो फर्स्ट लाइन जो ये से निकाले ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसको मैं ए डैश करके लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट यही लाइन ए से जो निकला यही लाइन सेकंड वर्टिकल लाइन पे यहाँ पे इंटरसेक्ट है, इसको मैं बी डैश। नेक्स्ट सेकंड जो लाइन बी से निकला है मिडल लाइन, ये मिडल लाइन जो है ये 3 डैश वर्टिकल लाइन पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसको यहाँ पे मार्क कीजिए सी डैश करके। ये मिडल लाइन जो है ना उसका एक ही पॉइंट आएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट सी से जो निकला है, थर्ड लाइन सी से जो थर्ड लाइन निकला है वो जो है फोर डैश वर्टिकल लाइन पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे मार्क कीजिए डी डैश। और फिफ्थ पे यहाँ पे यही लाइन सी से जो निकला है फिफ्थ वर्टिकल लाइन पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसको यहाँ पे मार्क कीजिए ई डैश, ई एंड पॉइंट। सो इसको आप एफ डैश करके ले सकते हैं। ये बी पॉइंट को ही आपको एफ डैश करके ले सकते हैं। मतलब कर्व निकालते जब आपको आसान होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे देखो मैं कर्व निकालता हूँ। ठीक है, 0 से स्टार्ट करता हूँ, ये सभी पॉइंट से पास होते होते यहाँ पे 6 डैश को एंड करता हूँ ऐसे। ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। ठीक है, अभी आपको कैम प्रोफाइल निकालना है। यहाँ पे देखो कैम प्रोफाइल निकालने के लिए मैं और थोड़ा यहाँ पे गिवन लिखा हूँ। यहाँ पे बेस सर्कल रेडियस है 3 सेंटीमीटर। कैम रोटेशन जो है क्लॉकवाइज यहाँ पे दिया हुआ है क्लॉकवाइज करके। ओके, सो क्लॉकवाइज बोले तो आपको लेफ्ट साइड में एंगल्स मेजर करना है, लेफ्ट साइड में। टाइप ऑफ फॉलोअर जो है नाइफ एज फॉलोअर है। सो बट यहाँ पे देखो बेस सर्कल रेडियस को आपको वाई एक्सिस के स्केल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में आप जो वाई एक्सिस का स्केल जो सेट किए रहते हैं उसके हिसाब से आपको ये बेस सर्कल का रेडियस का वैल्यू चेंज करना है। यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस स्केल इन डिस्प्लेसमेंट डायग्राम दैट इज़ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। वाई एक्सिस का स्केल डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में जो है नहीं
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो इस वही यहाँ पे लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो बेस सर्कल रेडियस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, बेस सर्कल रेडियस 3 सेंटीमीटर है, सो एज पर द स्केल भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो अभी आपको फर्स्ट क्या करना है, बेस सर्कल निकालना है। रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर सेट करके बेस सर्कल निकालना है। ओके, यहाँ पे देखो एंगल्स इस तरफ आएंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा इस तरफ निकाल रहा हूँ। ये होगा आपका बेस सर्कल। ओके, कैम सेंटर है ये होगा आपका बेस सर्कल। ओके, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में मेंशन किया है कि फॉलोअर एक्सिस जो है नी कैम सेंटर से पास हो रहा है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। when the follower axis passes through the cam center, तो यहाँ पे आपको एक्सिस जो है नी कैम सेंटर से ऊपर, कैम सेंटर के ऊपर ही निकालना है ऐसे। ये होगा आपका फॉलोअर एक्सिस। ओके, सो यहाँ पे देखो टाइप ऑफ फॉलोअर जो है नई फेज फॉलोअर है, तो नई फेज फॉलोअर के लिए आपको फॉलोअर ऐसे निकालना पड़ेगा। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे आउटस्ट्रोक, ड्वेल, रिटर्न स्ट्रोक मार्क करना पड़ेगा। आउटस्ट्रोक देखो यहाँ पे कितना है, आउटस्ट्रोक गिवन में 120 डिग्रीज है। सो आपको यहाँ पे देखो कैम रोटेशन जो है क्लॉकवाइज है, तो इसलिए एक्सिस के लेफ्ट साइड में आपको एंगल्स मेज़र करना है। यहाँ से आउटस्ट्रोक 120 डिग्रीज मेज़र कीजिए। तो यहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेटली मार्क करता हूँ, आप सही से प्रोटेक्टर लेके ए एक्सिस से 120 डिग्रीज मेज़र कीजिए। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 120 डिग्रीज जो है यहाँ पे आएगा। अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट जो है ड्वेल 60 डिग्रीज है। ड्वेल जो है यहाँ पे गिवन में है, ड्वेल 60 डिग्रीज करके, फर्स्ट ड्वेल 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका आउटस्ट्रोक। नेक्स्ट ये लाइन से 60 डिग्रीज मेज़र कीजिए, 60 डिग्रीज मेज़र कीजिए। तो इतना आएगा अप्रॉक्सीमेटली वो। तो ये होगा आपका फर्स्ट ड्वेल, थीटा d1 इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। नेक्स्ट ए लाइन से रिटर्न स्ट्रोक, तो रिटर्न स्ट्रोक कितना है देखो यहाँ पे गिवन में रिटर्न स्ट्रोक जो है 90 डिग्रीज है। तो 90 डिग्री आपको ये लाइन से 90 डिग्रीज मेज़र करना है। तो यहाँ पे ऐसे आएगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री बोले तो इतना आएगा ऐसे। तो ये होगा आपका रिटर्न स्ट्रोक 90 डिग्रीज। तो अभी आपको आउटस्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक में 6 इक्वल पार्ट्स बनाना है। तो 120 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 6, so each part will be 20 degrees. 120 degrees divided by 6. Sorry, 120 degrees divided by 6. So each part will be 20 degrees. So each part will be 20 degrees. Each part आपका 20 डिग्रीज रहेगा। तो यहाँ से यहाँ 20 डिग्रीज मेज़र कीजिए। सो वैसे ही हर एक पार्ट 20 डिग्रीज मेज़र करके एंगल सेट कीजिए। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। सो ये होगा यहाँ पे 20 डिग्रीज यहाँ पे आएगा, फर्स्ट 20 डिग्रीज। नेक्स्ट ए पॉइंट से नेक्स्ट 20 डिग्रीज, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट ए पॉइंट से नेक्स्ट 20 डिग्रीज, नेक्स्ट ए पॉइंट से ए 20, नेक्स्ट ए पॉइंट से ए 20 डिग्रीज। सो यहाँ पे यहाँ से यहाँ 20 डिग्रीज, यहाँ से यहाँ 20 डिग्रीज, नेक्स्ट 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 यहाँ से यहाँ 20 डिग्रीज। सो टोटल 6 पार्ट्स हो गए। यहाँ पे देखो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये होगा 6। सिमिलरली 90 डिग्रीज में आपको 6 इक्वल पार्ट्स बनाना है। 90 डिवाइडेड बाय 6, सो ईच पार्ट कितना होगा, ईच पार्ट 15 डिग्रीज बनेगा। तो ईच पार्ट यहाँ से 15 डिग्रीज मेज़र कीजिए, यहाँ से यहाँ 20 डिग्रीज, नेक्स्ट 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 यहाँ से यहाँ, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ 20 डिग्रीज। सो 6 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो ये 0 डैश यहाँ से स्टार्ट किया आप रिटर्न स्ट्रोक, ये 0 डैश, ये 0 डैश, ये 1 डैश, ये 2 डैश, 2 डैश यहाँ पे है, ये 3 डैश, ये 4 डैश, ये 5 डैश, ये 6 डैश। ओके।
तो अभी यहाँ पे पार्ट्स बनाने के बाद आपको लाइंस निकालना है, ये 1 2 3 वहाँ तक। सेम प्रोसीजर आप पहले जो किए ना वही प्रोसीजर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे 1 डैश 2 डैश, सिर्फ आपको आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक में करना है, डुअल में पार्ट्स नहीं बनाना है। तो ये हो गया आपका रिटर्न स्ट्रोक में 6 पार्ट्स। ओके, अभी देखो आपको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम यूज़ करके आपको ये करना है। अभी आपके यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम देखो 1 से 8 तक वो कितना डिस्टेंस है आपको यहाँ पे आप एक कटर से आप मेज़र नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको स्केल यूज़ करो। यहाँ पे देखो डिस्टेंस जो है 0.3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखो 0.1 यहाँ पे है, 0.1 यहाँ पे है, तो यहाँ से 0.3 सेंटीमीटर ए लाइन पे मार्क कीजिए, तो यहाँ पे आएगा, ये हो गया आपका ए पॉइंट। सो नेक्स्ट बी पॉइंट के लिए नंबर 2 से बी तक वो डिस्टेंस मेज़र कीजिए, यहाँ पे नंबर 2 है, ये हो गया बी। सेम प्रोसीजर एज यूजुअली आप प्रीवियस प्रॉब्लम से किया ना वैसे ही। नेक्स्ट यहाँ से 3 से सी तक मेज़र कीजिए, 3 यहाँ पे ये सी तक मेज़र कीजिए, ये होगा सी। नेक्स्ट 4 से डी, 4 से डी, 4 से यहाँ पे डी से मार्क कीजिए। नेक्स्ट 5 यहाँ पे देखो, 5 से ई, 5 यहाँ पे है, ओके, इसको मार्क कीजिए, ये होगा ई। नेक्स्ट जो है एफ, यहाँ से है एफ, 6 से वाला एफ, यहाँ पे ये वाला होगा एफ। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 0 डैश से यहाँ पे एफ डैश करके मार्क किया मैं, यहाँ पे एफ डैश करके है, बी पॉइंट और एफ डैश पॉइंट दोनों एक ही है, बी पॉइंट, स्मॉल बी पॉइंट और एफ डैश पॉइंट दोनों एक ही है। यहाँ से यहाँ एफ डैश है, तो 0 डैश यहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे आके एफ डैश मार्क कीजिए, ये होगा आपका एफ डैश। नेक्स्ट देखो 1 से ए डैश, ये है 1 यहाँ पे, ए डैश, ओके। नेक्स्ट 2 डैश से बी डैश, 2 डैश यहाँ पे, ये होगा बी डैश। नेक्स्ट 3 डैश से सी डैश, 3 डैश से सी डैश, 3 डैश से सी डैश। नेक्स्ट 4 डैश से 5 डैश, 4 डैश से 5 डैश, सॉरी 4 डैश से डी डैश। नेक्स्ट देखो 5 डैश सी डैश, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है, आप स्केल यूज़ कीजिए, यहाँ पे 0.3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी आपको 5 डैश पे 0.3 सेंटीमीटर मार्क कीजिए, ये होगा आपका ई डैश, ये होगा डी डैश। नेक्स्ट यहाँ पे एंड खत्म होना। तो यहाँ पे देखो टाइप ऑफ फॉलोअर जो नई फेज फॉलोअर है, जस्ट यहाँ पे आप 0 से ये बी सी डी ये सभी पॉइंट से पास होते होते एक स्मॉल फ्री हैंड कर्व निकालना है, कर्व। स्केल वगैरह कुछ नहीं यूज़ करना है, सिर्फ आपको फ्री हैंड से निकालना है, ये होगा आपका कैम प्रोफाइल। और यहाँ पे देखो सिर्फ रोलर और फॉलोअर में उतना ही आपको पिच सर्कल आएगा, सिर्फ रोलर फॉलोअर में उतना ही पिच सर्कल आएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका कैम प्रोफाइल। अभी देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, स्टिल वी नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग आउटस्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक। आउटस्ट्रोक में और रिटर्न स्ट्रोक में जो है आपको मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे नोट्स में जो है कैलकुलेशंस अवेलेबल है, यहाँ पे आपको देखो थीटा ओ आउटस्ट्रोक का एंगल की ज़रूरत पड़ेगी और उस एंगल को आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए रिटर्न स्ट्रोक का एंगल भी यूज़ होगा और उस एंगल को आपको
रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो यहाँ पे भी यहाँ पे रेडियंस में कन्वर्ट किया हुआ है 90 डिग्रीज़ को, रिटर्न स्ट्रोक के एंगल को। नेक्स्ट आपको जो भी वैल्यूज सेंटीमीटर में है या mm में है उन सब वैल्यूज़ को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखो स्ट्रोक 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो आपको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद वो 0.03 मीटर होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ओमेगा की ज़रूरत पड़ेगी आपको फॉर्मूले में, तो ओमेगा फाइंड करने के लिए आपको स्पीड यूज़ करना पड़ेगा n 2πn/60। n का वैल्यू यहाँ पे 1200 दिया हुआ है गिवन में, n का वैल्यू यहाँ पे 1200 दिया है, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको ओमेगा फाइंड करना है, इतना आएगा। तो ये वैल्यूज़ लेके यहाँ पे फार्मूलेज है। वेलोसिटी ड्यूरिंग आउटस्ट्रोक, वेलोसिटी ड्यूरिंग आउटस्ट्रोक का फार्मूला ये है, मतलब वेलोसिटी ड्यूरिंग आउटस्ट्रोक मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का फार्मूला है। ये फार्मूला यूज़ करके आपको मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करना है आउटस्ट्रोक में। सिमिलरली वेलोसिटी इन रिटर्न स्ट्रोक, वेलोसिटी इन रिटर्न स्ट्रोक जो है वेलोसिटी इन रिटर्न स्ट्रोक जो है यहाँ पे रिटर्न स्ट्रोक में साइक्लोइडल मोशन है, तो साइक्लोइडल मोशन का वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी इन रिटर्न स्ट्रोक आपको वो फार्मूला यूज़ करना है यहाँ पे। वेलोसिटी इन रिटर्न स्ट्रोक इन साइक्लोइडल मोशन, साइक्लोइडल मोशन का रिटर्न स्ट्रोक का साइक्लोइडल मोशन का मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक का फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आउटस्ट्रोक में रिटर्न स्ट्रोक में जो है मोशन है साइक्लोइडल मोशन है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक वो जो फार्मूला नहीं साइक्लोइडल मोशन का लेना है, तो वो ये फार्मूला है। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको आंसर यहाँ पे आएगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन ड्यूरिंग आउटस्ट्रोक, यहाँ पे देखो आउटस्ट्रोक में मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग आउटस्ट्रोक उसका फार्मूला यहाँ पे यूज़ करके आपको फाइंड करना है। सिमिलरली रिटर्न स्ट्रोक में मोशन जो है साइक्लोइडल मोशन है, तो साइक्लोइडल मोशन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक, तो उसका फार्मूला यूज़ करके यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये होगा आपका कैलकुलेशन। ओके ओके, सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द प्रॉब्लम। सो देयर इज़ वन मोर प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो मैं और एक प्रॉब्लम के बारे में आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। सिंपल प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो ये वही सेम प्रॉब्लम रहेगा। यहाँ पे देखो यही सेम प्रॉब्लम है, ये गिवन सभी सेम रहेगा। सिर्फ यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये आउटस्ट्रोक में जो है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन के बदले में यहाँ पे भी मैं साइक्लोइडल मोशन कंसिडर करके प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में जो है सभी डेटा सेम रहेगा, सिर्फ जो है यहाँ आउटस्ट्रोक में जो है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन के बदले में साइक्लोइडल मोशन लिया हुआ है। मतलब आउटस्ट्रोक में भी साइक्लोइडल मोशन और रिटर्न स्ट्रोक में भी साइक्लोइडल मोशन, वो वैसे प्रॉब्लम वैसे कंसिडर करके यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे देखो ये सेम गिवन डेटा है, प्रीवियस प्रॉब्लम का ही गिवन डेटा है। सिर्फ यहाँ पे देखो आउटस्ट्रोक 120 डिग्रीज है और मोशन जो है साइक्लोइडल है। यहाँ पे देखो यहाँ पे सॉरी ये 12 हो गया, 12 है ये। ओके, ये 12 60 डिग्रीज है। ट्वेल्व 60 डिग्रीज है। यहाँ पे रिटर्न स्ट्रोक जो है 120 डिग्रीज लिया हुआ है। यहाँ पे मोशन जो है साइक्लोइडल है। दोनों आउटस्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक में प्रीवियस प्रॉब्लम में रिटर्न स्ट्रोक 90 था, प्रीवियस प्रॉब्लम में रिटर्न स्ट्रोक का एंगल 90 था, बट इस प्रॉब्लम में जो है रिटर्न स्ट्रोक का एंगल जो है 120 लिया हुआ है। बट यहाँ पे देखो दोनों आउटस्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक में मोशन जो है साइक्लोइडल है। आउटस्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक में मोशन जो है साइक्लोइडल है और दोनों का एंगल 120 डिग्रीज है। और ड्वेल जो है फर्स्ट ड्वेल जो है 60 डिग्रीज है। तो यहाँ पे देखो उसके हिसाब से आपको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम यहाँ पे देखो आउटस्ट्रोक में साइक्लोइडल मोशन है, रिटर्न स्ट्रोक में भी साइक्लोइडल मोशन है। यहाँ पे देखो रीजनरेटिंग सर्कल आएगा, आउटस्ट्रोक में भी रीजनरेटिंग सर्कल आएगा, रिटर्न स्ट्रोक में भी रीजनरेटिंग सर्कल आएगा। रीजनरेटिंग सर्कल आउटस्ट्रोक में यहाँ पे इस कॉर्नर पे निकालना है और रिटर्न स्ट्रोक में रीजनरेटिंग सर्कल यहाँ पे निकालना है। ये कैसे निकालना है, क्या निकालना है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इतना ऐसे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम एज यूजुअल प्रोसीजर से डिस्प्लेसमेंट डायग्राम निकालिए। उसके बाद आपका नई फेज फॉलोअर का क्या प्रोफाइल बनाइए। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। Okay, this is about the two problems.